Good morning, ninth class. Students, I hope you all are well. And now we are going to start our second term. In this second term, we will start from chapter number 4, that is linear equations in two variables. Firstly, starting from the examples, write each of the following equations in the form ax plus by plus c equals to 0 and find the values of a b c in each case. बेटे statement given है थानू. Firstly, you have to make this form, that is ax plus by plus c is equals to 0. Like example number 1, first part is 2x plus 3y is equals to 4.37. Listen carefully, this chapter is quite easy and scoring. ax plus by प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये फॉर्म बनानी है. इट मीनस कि जो राइट साइड ते है साढ़े कोले 0 होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए. वट वी विल डू फर्स्टली, वी विल टेक दिस टर्म टू द लेफ्ट साइड, सो इट विल बिकम 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0. नाउ कंपेयरिंग बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, वट वी गेट, ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2. ठीक है, एक्स वाली टर्म के नाल एक्स वाली टर्म कंपेयर करनी है, वाई वाली टर्म के नाल वाई वाली टर्म कंपेयर करनी है, एंड जिहदे नाल एक्स वाई नहीं लग्या हुंदा दैट इज़ कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट के नाल कॉन्सटेंट कंपेयर करनी. सो वट इज़ दिस b इज़ इक्वल्स टू 3 एंड वट इज़ द वैल्यू ऑफ c, इट इज़ माइनस 4.37. बच्चे साइन का भी तुसीं ध्यान रखना है. ठीक है, इफ़ यू विल राइट 4.37 then it will be wrong because minus must be written along with it. Now moving to its second part. Second part is x minus 4 is equals to root 3y. Again same thing, x minus 4 equals to root 3y. Firstly what we will do, take this term on the left side and it will become x minus root 3y plus the root 3y ने बेटे दूसरी साइड जाके की हो जाने हैं माइनस the root 3y माइनस दे 4 ऑलरेडी इतने प्रेजेंट ही ने इक्वल्स टू 0. बच्चे आई हैव रिटन रूट 3y आफ्टर एक्स वाली टर्म के बाद ही लिख लिया बिकॉज जिदे नाल असीं कंपेयर करना है उहदे विच भी फर्स्टली वी हैव ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. पहला एक्स वाली टर्म लिखनी है दैन वाई वाली, आफ्टर दैट कॉन्सटेंट. ना कंपेयरिंग बोथ ऑफ दिस इक्वेशंस वट यू गेट, जिदे अगे कुछ नहीं हुंदा उहदे अगे की हुंदा बेटे 1. So what is the value of A? It is 1. What is the value of B? It is root 3. No, it is minus root 3. Okay. And what is the value of C? It is minus 4. Okay students. Now third and fourth part, try it yourself. Okay. Next, moving to example number 2. Write each of the following as an equation in two variables. जो सानू नंबर गिवन है x इज इक्वल्स टू -5, इसी की करना है, वी हैव टू राइट एज एन इक्वेशन. यदि इक्वेशन बनानी है इन टू वेरीएबल्स, तो एक ही वेरीएबल है. ठीक है, हाउ वी विल राइट इट, एक्चुअली वी हैव टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c. आवर स्टेटमेंट इज़ x इज़ इक्वल्स टू -5. बेटे इतने x के अगे कुछ नहीं है, इट मीनस आई कैन राइट 1. सो 1x, y वाली तो टर्म ही है नहीं गी, बट असी शो करनी है तो असी की लिखांगे 0 मल्टीप्लाई बाय y. ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय y. पॉइंट मीन्स इट इज़ नॉट डेसिमल हेयर, इट इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एंड दिस -5 वी विल राइट इट plus 5 equals to 0. I will take it on the left side, or you can do it earlier also. You can make the equation firstly x plus 5 equals to 0, then arrange it in the form of ax plus by plus c equals to 0. But you have to make this form. So x दे अगे कुछ नहीं सी, असी 1 लिखता, y वाली टर्म ही है नहीं सी तो उत्थे असी की लिखता 0y plus 5 equals to 0. So this is the answer. So similarly moving to the second part, y is equals to 2
Now in second part, y is equals to 2. बेटे we can write y minus 2 equals to 0. ठीक है, taking this 2 on the left side. Now comparing with ax plus by plus c equals to 0. What will it become? एक्स वाई द टर्म है नहीं, इट मीनस कि इस बार इसी की करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट इज़ 0x प्लस वाई दे अगे की है कुछ भी नहीं 1 है, इट मीनस सो 1y माइनस 2 equals to 0. So this like this we can write this equation. Now is third and fourth part, you have to try it yourself. If you have any problem then you can ask me. Okay students, then moving to exercise 4.1. Your first question is the cost of a notebook. The cost of the notebook is twice the cost of a pen. What they are saying कि जी नोटबुक है उसका प्राइस जो है वो पेन के कॉस्ट नालों डबल है. ट्वाइस मीनस डबल. ठीक है, सपोज जे पेन 5 रुपीज़ है तो नोटबुक कितने रुपीज़ की है 10. नेक्स्ट, राइट अ लीनियर इक्वेशन राइट द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स टू रिप्रजेंट द स्टेटमेंट. तुसी इक्वेशन बनानी है, किद्दां बनाओगे बेटे? असी की कर लांगे, आपां मान लैंदे आ कि लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ इक्वल्स टू एक्स एंड पेन इज़ इक्वल्स टू वाई, क्योंकि इसी की फॉर्म बनानी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. So let me write here, let cost of notebook is your wish, तुसी किनू x मनना है किनू y मनना है. ठीक है, so let cost of notebook is equals to x rupees and cost of pen is equals to y rupees. According to question की कह रहे हैं कि जिन्ना नोटबुक किन्ने रुपीज़ दी है पेन दे डबल दी. इट मीनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट x इज़ इक्वल्स टू 2y. यही कहना चाहते हैं ना, जे पेन 5 रुपीज़ दा तक नोटबुक किन्ने दी है 10, 2 5 द 10. ठीक है, सो वी विल अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. सो दिस इक्वेशन विल बिकम x minus 2y equals to 0. राइट, सो x माइनस 2y कॉन्स्टेंट तो इतने है ही नहीं स्टूडेंट्स, सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 इज़ द फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b, c. As we have done in example number 1, it's similar to that example. Firstly तुसी की करना है, फॉर्म बना लेनी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट्स भी लैफ्ट साइड पर लै जाने ने और राइट साइड पर की रखना सिर्फ 0. एंड देन यू हैव टू कंपेयर एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी. लेट मी सॉल्व सम पार्ट्स फॉर यू. सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 bar. Right? So firstly we will write it as 2x plus 3y minus 9.35 bar equals to 0 and compare it with ax plus by plus c equals to 0. So after comparing what you will get, x वाली टर्म दे नाल बेटे x वाली टर्म कंपेयर करनी है, सो a इज इक्वल्स टू 2. y वाली टर्म दे नाल y वाली टर्म कंपेयर करो, सो b इज इक्वल्स टू 3. कॉन्स्टेंट्स के नाल कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करने हैं, सो c इज इक्वल्स टू माइनस 9.35 बार. इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूविंग टू इट्स सेकेंड पार्ट. इट इज़ x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0. इस क्वेश्चन दे विच बेटे डायरेक्टली भी असी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 बाय 5 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 10. Otherwise you can take the LCM also. Taking LCM, 5 will be the LCM. इधर नीचे कुछ नहीं 1 है, इधर नीचे कुछ नहीं 1 है. So what will it become? 5 divided by 1, 5. Here it will become 5x minus 5 divided by 5, 1. 1 multiplied by y,
y minus 5 divided by 1, 5, 5 10 the 50. You have solved these type of sums in previous classes, that's why students I am doing quite fast. So doing cross multiplication here, so it will become 5x minus y minus 50 equals to 0, because 5 multiplied by 0 is 0. Now comparing with ax plus by plus c equals to 0, what you will get? Comparing x terms, a is equals to 5. Comparing the y terms, so b will become, ਇਹਦੇ नीचे ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है बेटे, साइन का जरूर ध्यान रखना है. सो v इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -50. Okay students, now rest of the parts are your homework. Try it yourself. If you have any problem then you can ask me. That's all for today. Thank you. Have a nice day.